वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज पार्ट 18। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSP और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। दिस टॉपिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K MCQs। Friends, as you know, the weightage of general knowledge with special reference to J&K in your exam is 30 marks। मीन्स पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 30 मार्क्स का आएगा। सो आप जो है इनको अच्छे से रिवाइज़ करो क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1 इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। ए इज़ अरुण मिश्रा, बी इज़ नृपेंद्रा मिश्रा, सी इज़ PK मिश्रा एंड डी इज़ मरिनल सिंह। सो फ्रेंड्स, गेस द आंसर। 5 सेकंड्स इन योर हैंड। आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है, आंसर गेस कीजिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हियर द राइट आंसर इज़ PK मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज नेपाल काउंटरपार्ट KP शर्मा ओली jointly inaugurated South Asia's first cross-border petroleum product pipeline from. Here, A is Bihar to Amlekganj, B is Uttar Pradesh to Kathmandu, C is West Bengal to Birgunj, D is West Bengal to Amlekganj. So friends, guess the answer. Here the right answer is option B, that is Bihar to Amlekganj is the right answer. Prime Minister Narendra Modi and his Nepal counterpart KP Sharma Oli jointly inaugurated South Asia's first cross-border petroleum products pipeline from Bihar to Amlekganj. Option A is the right answer. Next question is, what is the sex ratio at birth SRB for the year 2018-19 after the implementation of Beti Bachao Beti Padhao BBBP program in 2015? A is 957, B is 941, C is 923 and D is 931. Guys, guess the answer. Here the right answer is option D, that is 931. Next question is, UNESCO has tied up with Indian state to promote state's intangible cultural heritage. So कौन सी स्टेट है वो? UNESCO has tied up with which Indian state to promote state's intangible cultural heritage? A is Goa, B is Manipur, C is Rajasthan and D is Punjab. Here the right answer is option C, that is Rajasthan. Next question is, the capital city of Mali is. The capital city of Mali is. Here option A is Nouakchott, B is Bamako, C is Rabat, D is Port Louis. So hi guys, guess the answer. Here the right answer is option, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा। The capital city of Mali is option B is the right answer, that is Bamako. Next question is, according to the latest release by the World Gold Council, which spot has been given to India in terms of total gold reserves? ठीक है, जो हमारा प्यारा भारत है उसका भी कोई जो है स्थान है किसमें? इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स में। ठीक है, तो यहाँ पे A है 5th, D है, B है यहाँ पे 8th, C है यहाँ पे 10th और D है यहाँ पे 12th। सो गाइज, गेस द आंसर। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, हमारे प्यारे भारत को जो स्थान मिला है गोल्ड रिजर्व में वो है हमारा ऑप्शन C, दैट इज़ 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस adjudged as best स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इन इंडिया। ये जो है हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, बल्कि भारत के पूरे हमारे प्यारे भारत के लोगों के लिए खुशी की बात है कि जो हमारी
माता श्री वैष्णो देवी श्राइन है उसको क्या मिला है यहाँ पे, बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस ऑफ इन इंडिया, ठीक है, उसको जो है एडजस्ट किया गया है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आने के चांसेस भी हैं क्योंकि हमारे स्टेट से रिलेटेड है। विच एमंग द फॉलोइंग प्लेस एडजस्ट एज बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इन इंडिया, आंसर इज वैष्णो देवी श्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the rank given to New Delhi in the 2019 Global Livability Index prepared by the Economist Intelligence Unit EIU? What was the rank given to New Delhi in the 2019 Global Livability Index prepared by the Economist Intelligence Unit, that is EIU? A is 112, B is 118, C is 120, D is 132. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा। यहाँ पे राइट आंसर बनता है 118। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ ऑफर्ड हाउ मच लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द रशियन फेयर ईस्ट रीजन्स। हेयर question is India has offered how much line of credit for the Russian Far East regions? Here US dollar 1 billion, US dollar 2 billion, US dollar 3 billion or US dollar 4 billion are the options. So India has offered how much line of credit for the Russian Far East regions? Here the right answer is option A, that is US dollar 1 billion. Friends, अभी हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, हमारे पास सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है और हमने जो है इन सबको रिवाइज करना है। सो थोड़ा स्पीडी काम करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन 2019 वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। अभी बात चली है किसकी, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शंस जो है यहाँ पे 28, 34, 16 और 52। What is the position of India in 2019 World Travel and Tourism Competitiveness Index? So here right answer is option B, that is 34. Next question is the last Mauryan king was, A is यहाँ पे है पुष्यमित्रा संगा, B है शोका, C है हर्षा और D है यहाँ पे बृहद्रथा। सो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका द लास्ट मौर्यन किंग बाज, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बृहद्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। विच प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC दैट एम्स टू मेक कैरी बैग्स बाय मिक्सिंग प्रोसेस्ड एंड ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट विद कॉटन फाइबर रैग्स इन द रेशियो 20:80। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, विच प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC दैट एम्स टू मेक कैरी बैग्स बाय मिक्सिंग प्रोसेस्ड एंड ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट विद कॉटन फाइबर रैग्स इन द रेशियो 20:80। सो हियर द राइट आंसर इज, यहाँ पे जो पहले ऑप्शन हैं उसको देख लेते हैं। रीप्लान, उसके बाद में रिसाइकल, रीयूज़, रेंडर। सो इतना आप याद रखना कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है उसने जो कैरी बैग बनाने का जो प्लान लॉन्च किया है उसका जो नाम है, उसका नाम है ऑप्शन ए, दैट इज़ रीप्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। ए इज़ साल्ट लॉ, बी इज़ रॉलेट लॉ, सी इज़ जलियांवाला बाग मास्केयर, उसके बाद में डी है यहाँ पे एक्ट ऑफ 1909। हियर द राइट आंसर इज़ गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इज़ द राइट आंसर। 1919 का जो सत्याग्रह था वो प्रोटेस्ट था किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2019 बिगेन रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री।
A is Singapore, B is Russia, C USA and D is Indonesia. Exercise Yuddha Vyas 2019 began recently between India and option C is the right answer, that is USA. Yuddha Vyas, India and USA. Next question is, which channel was awarded with चैम्पियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच चैनल वाज अवार्डेड विद चैम्पियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड बाय द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हेपेटाइटिस? ए है एनडीटीवी, बी है आज तक, सी है डीडी न्यूज़ और डी है बीबीसी. गाइज हियर द राइट आंसर इज, which channel was awarded with Champions of Empathy Award by Lok Sabha Speaker Om Birla for spreading awareness about hepatitis? Here the right answer is option C, that is DD News. Question important है. Next question is, which IIT has collaborated with Amazon Web Services AWS to launch National Artificial Intelligence Resource Portal, that is NAIRP? बात चली है IIT की, तो which IIT has collaborated with Amazon Web Services AWS to launch National Artificial Intelligence Resource Portal NAIRP? A is IIT कानपुर, B is IIT चेन्नई, C is IIT रुड़की और D है यहाँ पे IIT खड़गपुर. Guys, guess the answer. Here the right answer is IIT खड़गपुर. Next question is, Mumbai has been ranked at which spot in World Safe Cities Index 2019? A है 40th, B है 42, C है 45th और D है 52 यानी कि 52nd. सो गाइज यहाँ पे मुंबई हैज़ बीन रैंक्ड एट विच स्पॉट इन वर्ल्ड सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2019? हेयर द राइट आंसर इज 45th. फास्ट रिविजन है फ्रेंड्स. Next question is question number 18. Which country announces contribution of $22 million to GFTAM for 6th replenishment cycle? Here A is Japan, B is Iran, C is India और D is Bangladesh. तो इंडिया ने $22 million to GFTAM for 6th replenishment cycle के लिए देने के लिए कहा है. सो कंट्री का नाम है इंडिया, हमारा प्यारा भारत. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वॉक टू वर्क ऑन वेडनेसडेज, दैट इज WWW कैंपेन? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वॉक टू वर्क ऑन वेडनेसडेज WWW कैंपेन? हेयर द राइट आंसर इज, फ्रेंड्स पहले ऑप्शंस देख लेते हैं. मिजोरम, मेघालय, आसाम, उत्तराखंड. यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका, वो बनता है आपका ऑप्शन बी, दैट इज मेघालय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सिटीज़ टू बी कवर्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सर्विसेज बाय 2022? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए है 100, 88, 72, 55. Question is, how many cities to be covered under central government health schemes services by 2022? Here the right answer is option A, that is 100. Next question is, which among these bowlers has not taken hat-trick wicket? Which among these bowlers has not taken hat-trick wickets in Test crickets? A is Harbhajan Singh, B is Irfan Pathan, C is Jasprit Bumrah and D is Anil Kumble. Here the right answer is, पूछा गया है कि which among these bowlers has not taken hat-trick wickets in Test series? तो हैट्रिक विकेट जो है वो जिन्होंने नहीं ली है उनका नाम है यहाँ पे अनिल कुंबले. टेस्ट सीरीज में इन्होंने हैट्रिक विकेट नहीं ली है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट बैंड 12 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year? ए इज़ हरियाणा, बी इज़ राजस्थान, सी इज़ उड़ीसा और डी है यहाँ पे बिहार. तो विच स्टेट बैंड 12 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year? हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री in the
were to issue BSID, which captures the facial biometric data of seafarers. BSID stands for, इसका जो है उन्होंने फुल फॉर्म पूछा है हमें. पहला है बायोमेट्रिक सी फेरर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट. बी है यहाँ पे बायोमेट्रिक सी आधार आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट. चलते हैं आगे. सी है यहाँ पे बायोमेट्रिक सी फेरर आइडेंटिटी डोमिसाइल और डी है यहाँ पे बायोमेट्रिक सी फेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट. सो फ्रेंड्स, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, BSID. याद रखना इसको, BSID बायोमेट्रिक seafarer identity document. Next question is, where was the nationwide Fit India movement by Prime Minister Narendra Modi launched? Where was the nationwide Fit India movement by Prime Minister Narendra Modi launched? Here A is India यानी कि न्यू दिल्ली, B is कोटा, C is भोपाल और D है यहाँ पे इंदौर. इट वाज लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली. फिट इंडिया मूवमेंट कहाँ पे लॉन्च की गई थी? हमारे PM जी के द्वारा ये किया गया था न्यू दिल्ली में. आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन स्पेस कमांड? विच नेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन स्पेस कमांड? हेयर ए इज़ रशिया, B इज़ China, C is United States और D is Israel. So here the right answer is United States has launched its own space command. Next question is, India ranks dash on global happiness survey according to the report by. यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है, इंडिया जो है इनको जो स्थान मिला है वो मिला है हमें कौन सा? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया रैंक्स डैश ऑन ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय. यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडिया रैंक्स डैश ऑन ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय, यो मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा. ये होता है हमारा इप्सोस. ठीक है, जो एजेंसी है ये वो कौन सी है? इप्सोस, IPSOS. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इंडिया को 9th रैंक दिया है. हैप्पीनेस सर्वे जो है किया है, ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे, इन्होंने इंडिया को 9th रैंक दिया है. सो हेयर द राइट आंसर इज़ 9th. ठीक, यहाँ पे 9th इज़ द राइट आंसर. इप्सोस, IPSOS जो है, according to the report by Ipsos, India ranks 9th on global happiness survey. Next question is, credit rating agency CRA, that is CRA, Moody has recently cut the rating of a financial institution to junk. The institution is, देखो इन्होंने क्या किया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी हैज़ रिसेंटली हैज़ कट द रेटिंग ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू जंक. द इंस्टीट्यूशन इज़, हेयर द राइट आंसर इज येस बैंक. येस बैंक इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल फ्लाइट कमांडर. देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं. हु हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल कमांडर? हेयर द ऑप्शंस आर सरला ठकराल, अवानी चतुर्वेदी, सालिजा धामी और डी है यहाँ पे भावना कांत. हेयर द राइट आंसर इज़ सालिजा धामी हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल फ्लाइट कमांडर. Option is Salija Dhami has become the India's first female flight commander. Next question is, GOI has launched a mobile application Jan Aushadhi Sugam,
Which ministry of the government has issued it? Here A is Ministry of Sports, B is Mini Stove, यहाँ के Ministry of Textiles, C is Ministry of Commerce, D is Union Ministry for Chemical and Fertilizers. Here the right answer is GOI has launched a mobile application Jan Aushadhi Sugam. Which ministry of the government has issued it? Guess the answer friends. 5 seconds in your hand. Here the right answer is, यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो है आपका यूनियन मिनिस्ट्री फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट्स डैश प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट्स एज जॉइंट सेक्रेटरीज. तो यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट्स, ऑप्शंस आर 4, 6, 9, 12. यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट्स प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट्स एज जॉइंट सेक्रेटरीज. कितने? यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 9. क्वेश्चन नंबर 31 इज शिलोंग डिक्लेरेशन recently seen in news is related to? A is renewable energy, B is antimicrobial resistance और C है artificial intelligence, D है e-governance. Friends, guess the answer. Shillong declaration recently seen in news is related to? Here the right answer is option D, that is e-governance. Next question is, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 32. मोमेंटम फॉर चेंज इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ. मोमेंटम फॉर चेंज इज़ एन इनिशिएटिव फॉर ए इज यूएन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट. सो मोमेंटम फॉर चेंज इज़ एन इनिशिएटिव फॉर. गेस द आंसर गाइज. हियर द राइट आंसर इज मोमेंटम फॉर चेंज इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ. आई होप आपने आंसर गेस कर दिया होगा. हेयर द राइट आंसर इज यूएन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट. मोमेंटम फॉर चेंज इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टॉप्ड द चिल्ड्रंस वेल बीइंग इंडेक्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच स्टेट टॉप्ड द चिल्ड्रंस वेल बीइंग इंडेक्स. ए इज़ केरला, बी इज़ तमिलनाडु, सी इज़ मध्य प्रदेश और डी है यहाँ पे उत्तराखंड. Question number 33. Which state topped the Children's Well-being Index? Here the right answer is, friends, guess the answer. Question number 33. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Option A is the right answer, that is Kerala. Next question is question number 34. Which of the following cricket stadium will be renamed as Arun Jaitley Stadium in memory of its former president? देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. फर्स्ट है वानखेड़े स्टेडियम, बी है यहाँ पे राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सी है ईडन गार्डन्स एंड डी है यहाँ पे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम. सो फ्रेंड्स, हियर द राइट आंसर इज, कौन से स्टेडियम का नाम जो है अरुण जेटली जी के नाम पे रखने की घोषणा की गई है. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम. Next question is Microsoft has partnered with which of these management institutes to advance AL skiing in India. Here Microsoft has partnered with which of these management institutions to advance AL skiing in India. Here the right answer is ISB. Option A is the right answer, ISB. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया आपका. नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज विच फुटबॉल टीम हैज़ वोन द 2019 डुरंड कप टूर्नामेंट. हेयर ए इज़ चेन्नईयन, बी इज़ मोहन बगान, सी इज़ गोकुलम केरला और डी है यहाँ पे न्यू दिल्ली आर्म्ड फोर्स. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज़ ऑप्शन सी, Gokulam Kerala has won the 2019 Durand Cup tournament. Next question is what is the theme of the 45th G7 summit which was held in France. A is fighting income and gender inequality and protecting biodiversity. Friends, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यही आपका राइट आंसर है.
fighting income and gender inequality and protecting biodiversity is the theme of the 45th G7 summit, which was held in France. Option A is the right answer. Next question is question number 38. That is चंदौली नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए इज़ उत्तर प्रदेश, बी इज़ महाराष्ट्र, सी इज़ मध्य प्रदेश, डी इज़ उड़ीसा. चंदौली नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट. आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. फ्रेंड्स यहाँ पे आप जल्दी जल्दी गैस किया करो. चंदौली नेशनल पार्क इज़ इन महाराष्ट्र. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग institutions will prohibit single-use plastic from 2nd October. Here the right answer is, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं AAI, इंडियन रेलवे, CRPF, एयरफोर्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विल प्रोहिबिट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम 2nd October. Here the right answer is Indian Railway. Indian Railway is the right answer. Next question is question number 40. Advancement through technology is a slogan of which of these following multinational company. Advancement through technology is a slogan of which of the following multinational company. Here A is HP, B is Dell, C is BMW और D है Audi. यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका, आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा. एडवांसमेंट क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. एडवांसमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी इज ए स्लोगन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीनेशनल कंपनी. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑडी. ऑडी जो मल्टीनेशनल कंपनी है इसका स्लोगन है ये, एडवांसमेंट विद टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. दैट इज विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द स्टेट रूफ टॉप सोलर attractiveness index SARAL that was launched during the review, planning and monitoring RPM meeting with states and state power utilities. Here A is Maharashtra, B is Karnataka, C is Tamil Nadu and D is Punjab. Which state has topped the state rooftop solar attractiveness index SARAL that was launched during the review, planning and monitoring RPM meeting with states and state power यूटिलिटीज़. हेयर आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. ऑप्शंस थे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब. हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 42. रिसेंटली द 9th सेशन ऑफ द इंडिया कीनिया जॉइंट ट्रेड कमेटी JTC वाज हेल्ड इन. कहाँ पे हुआ? रिसेंटली जो 9th सेशन ऑफ द इंडिया कीनिया जॉइंट ट्रेड कमेटी हुआ है JTC, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ है? A इज़ इलाहाबाद, B इज़ न्यू दिल्ली, C है कोलकाता और D है मुंबई. हियर द राइट आंसर इज़ ऑप्शन, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. हियर द राइट आंसर इज़ ऑप्शन B, दैट इज़ न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 43. विच कंट्री लॉन्चेस बर्ड्स 5 एवर फेशियल बायोमेट्रिक डाटा बेस्ड seafarer identity document. Which country launches world's first ever facial biometric data-based seafarer identity document? Here the right answer is, friends, ऑप्शंस हैं यहाँ पे इजराइल, जापान, इंडिया, चाइना. तो आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. विच कंट्री लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फेशियल बायोमेट्रिक डाटा-बेस्ड seafarer identity document? Here the right answer is हमारा प्यारा भारत, दैट इज़ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 44 इज़ जॉर्ज टाउन. यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? जॉर्ज टाउन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ. हमें क्या पता है कहाँ किसकी कैपिटल सिटी है? सो फ्रेंड्स हमें पता करना पड़ेगा बिकॉज ऑप्शंस आर देयर. हेयर A इज़ गुआना, B इज़ इक्वेडोर, C इज़ उरुग्वे और D है यहाँ पे कोलंबिया. सो जॉर्ज टाउन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ. आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. हेयर द राइट आंसर इज़ ऑप्शन A, दैट इज़ गुआना. Georgetown is the capital city of Guyana. Next question is question 45. Think different is a slogan of which multinational company? A is Microsoft, B is Audi, C is Apple or D is Lenovo. Think different is a slogan of which multinational company?
तो फ्रेंड्स आप सोच लो कि आप ही एप्पल हैं और आपका जो स्लोगन है वो क्या है आज से, वो है आपका थिंक डिफरेंट, बिकॉज वी हैव टू लर्न दिस. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आवर स्लोगन इज थिंक डिफरेंट बिकॉज वी हैव टू अचीव द गोल. ठीक है, तो आज से जो है हमारा नाम एप्पल है और हम जो है जो हमारा जो स्लोगन है वो क्या है, थिंक डिफरेंट. सो थिंक डिफरेंट इज़ द स्लोगन ऑफ विच मल्टीनेशनल कंपनी. आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी सी, दैट इज एप्पल. यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46 इज NASA has named a rock on Mars in honor of the iconic English band. What is the name of the band? NASA has named a rock on Mars in honor of the iconic English band. What is the name of the band? Here A is Metallica, B is the Rolling Stones, C is the Jam, D is the WHO या Who बोल सकते हैं आप. NASA has named a rock on Mars in honor of the iconic English band. What is the name of the band? I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Here the right answer is the Rolling Stones. Question number 47 is the author of the book Making India Awesome is. The author of the book Making India Awesome is A is Twinkle Khanna, B is Narendra Modi, C is रतन टाटा और D है चेतन भगत. फ्रेंड्स द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग इंडिया ऑसम इज़, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. हियर द राइट आंसर इज चेतन भगत. नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO रोट द बुक गांधी एंड स्टालिन. WHO मीन्स हु. यहाँ पे क्वेश्चन 48 इज who wrote the book Gandhi and Stalin. Here A is Raj Narayan, B is Louis Fisher, C is Anita Desai and D is Lal Bahadur Shastri. Friends, question is important. Who wrote the book Gandhi and Stalin? Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. फ्रेंड्स नहीं किया है तो आप कर लीजिए, आपके पास टाइम है. Who wrote the book Gandhi and Stalin? So 5 seconds in your hand and you have to take the right answer. Here the right answer is, आपने नहीं किया तो मैं कर देता हूँ फ्रेंड्स. Here the right answer is option B, that is Louis Fisher. Next question is in which year the Danish East India Company was formed? In which year the Danish East India Company was formed? A is 1614, next is 1615, next is 1616 and ऑप्शन डी इज़ 1716. फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपने एक ऑप्शन टिक करना है. बट फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू टिक द राइट ऑप्शन. ठीक है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे 0.25 की. तो इन विच ईयर द दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड. हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1616 इज द राइट आंसर. ठीक है. So next question is question number 50. Which airport has emerged? फ्रेंड्स आपने जो है बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आज. थोड़ा सा जो वीडियो है लंबा हो गया था इसलिए बीच में मैंने थोड़ा सा जो कर दिया है, प्लीज़ डोंट माइंड. क्वेश्चन नंबर 50 इज which airport has emerged as the second fastest growing airport in the world? यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा एयरपोर्ट है हैज़ इमर्ज्ड एज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड. ए इज़ कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज़ बेंगलुरु में है ये. ठीक है. और बी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में. और सी है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में. और डी है यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में. सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है हमारा, विच एयरपोर्ट हैज़ इमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड. हियर द राइट आंसर इज कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51. विच वाज द फर्स्ट बैंक टू ओपन ए ब्रांच ऑन फॉरेन सॉइल. Which was the first bank to open a branch on foreign soil? A is Allahabad Bank, B is State Bank of India, C is Bank of India, D is Punjab National Bank. So here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा.
फ्रेंड्स नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। विच वाज द फर्स्ट बैंक टू ओपन ए ब्रांच ऑन फॉरेन सॉइल? हेयर द राइट आंसर इज बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। नेम द e-commerce portal that is to be launched by Government of India in order to achieve revenues of around rupees 10 lakh crore in 2 to 3 years। बहुत ही important question है। Name the e-commerce portal that is to be launched by Government of India in order to achieve revenue of around rupees 10 lakh crore in 2 to 3 years। Here A is Volusion, B is शॉपिफाई और सी है यहाँ पे भारत क्राफ्ट और डी है यहाँ पे बिग कॉमर्स। फ्रेंड्स हेयर द राइट आंसर इज, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज भारत क्राफ्ट। 10 लाख करोड़ जो है 2 से 3 साल में हमने जो है क्या करना है, अचीव करना है, तो उसके लिए जो है भारत क्राफ्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक गांधी एंड स्टालिन? यहाँ पे ए है राज नारायण, बी है लुइस फिशर, सी है अनीता देसाई। फ्रेंड्स कुछ एक क्वेश्चन जो है वो जो इम्पॉर्टेंट बनते हैं वो रिपीट भी होते हैं। सो दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। हु रोट द बुक गांधी एंड स्टालिन? हेयर द राइट आंसर इज लुइस फिशर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द फर्स्ट बैंक टू ओपन ए ब्रांच ऑन फॉरेन सॉइल? हेयर हमने अभी पढ़ा है बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्रिपेयर बेल परफॉर्म बेल। अच्छे से मेहनत करो, बहुत कम समय बचा है फ्रेंड्स। बार बार कहता हूँ आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, यही हमारा भी मोटिव है, माई स्टडी चैनल का यही मोटिव है कि आप जो है अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।